So, hello everyone. So, we are starting a new unit today. This is work, energy, and power. Work, energy, and power is a very, very important unit. You have done this in your previous class, class ninth also. So, let's start with the basics first. Work. What is work? Work is denoted by W, and work is defined as the dot product of force acting on the body and the displacement S produced by the body. And the formula for work in physics this time is W equals to vector F dot vector S. Now, what do you mean by this dot? So, they are basically two products which we have studied in vector chapter. There is dot product in which we write dot in between two quantities, and then we have cross product in which we write cross. Now these two terms in maths, it, it may seem same, but in physics they mean completely different quantities. Suppose if we have two vectors and we have a dot product, so the formula, when you open up the formula of this, it will become AB cos theta. The dot product is always taken as cos theta. You know that there are two components. One is your horizontal component, which is your cos theta, and then we have a perpendicular or a vertical component which is called which is called sine theta. So this is your sine theta, and this component is called cos theta, and the resultant of it is represented by this line which is going diagonally. So if I write f dot s vector, then when you open up the formula it becomes fs cos theta. This is your first topic of the chapter, scalar product. You may write down in your notebook scalar product. Now, what do you mean by scalar product? Scalar product is the product of two vectors. We have two vectors A and B. So, it is the product or multiplication of the two vectors, and it is defined as the product of the vectors of the magnitude. उनका magnitude लेंगे हम, उसका product करेंगे, multiply करेंगे ए बी, and the cosine of the angle between them. इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल होगा थीटा, उसका कोसाइन ही लेना है, क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेस होगी. तो इसमें हम हॉरिजॉन्टली अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं बॉडी को, वो ऊपर तो जाएगी नहीं, वो सीधी ही तो जाएगी. इसीलिए हम कॉस वाला कंपोनेंट ले रहे हैं. अगर बॉडी हाइपोथेटिकली ऊपर की तरफ जाती फोर्स लगाने पर, then we would have taken sine theta. So since the body, when we apply force on a body, it will be displaced in the same direction in which you are applying the force. This is the box. मैंने इसमें उधर को फोर्स लगाया तो ये बॉडी उधर ही डिस्प्लेस होगी, इसीलिए हम cos थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं. इसीलिए यहाँ पे है स्केलर प्रोडक्ट. सो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, ये लिखी हुई है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर, और जब फॉर्मूला आप ओपन अप करोगे तो ये बन जाएगा ये ए बी कॉस थीटा, और अगर आप वर्क की डेफिनेशन लिखते हो तो वहाँ आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा. सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन एंड यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेल. So now we move on to work again. What is work? Work is defined as the dot product of force acting on the body and the displacement S produced. The basic definition of work is when your force produces motion in a body. जब फोर्स की वजह से मोशन आ जाए बॉडी में एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, और वो डिस्प्लेस भी हो जाए आपकी बॉडी, तब हम उसको बोलेंगे वर्क. वर्क में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. बॉडी में मोशन आएगा तो वो डिस्प्लेस तो होगी, और फोर्स लगाने पर ये चीज़ हो रही है. अगर फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, then that is your work according to physics. You can write down the definition and this is the formula.
इसका आप आगे का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, W=Fs cos थीटा। जब आप डॉट प्रोडक्ट हटा देते हो तो वेक्टर रिमूव हो जाएगा और cos थीटा लिख देंगे उसके आगे। The next is instantaneous power. The instantaneous power P of a body is defined as the dot product of force and velocity. So the formula is P equals to F vector dot V vector, or P equals to FV cos theta. You can write down both the definitions in your notebook. As you must have studied in previous units, there are three axes, which is x-axis, then we have y-axis, and then we have z-axis. ये किसने दिया तुझे? So the unit vector, what is unit vector? Suppose I take a unit vector I cap, you write cap on top of your unit vector. So the definition of unit vector is a vector divided by its own magnitude. ये होता है यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का यूनिट वेक्टर होता है एक्स आई कैप, वाई का होता है वाई जे कैप, और जेड का होता है जेड के कैप। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आई कैप की आई कैप के साथ, तभी उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा सॉल्व करके। जे कैप की जे कैप के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी वो 1 आएगा। के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो वो 1 आएगा। तो these three are the conditions in which the magnitude of the two vectors or the multiplication product of the two vectors comes as 1. But if you take two different vectors such as I cap j cap, or j cap k cap, or k cap I cap, then in that case your vector product will be 0 in all three cases. Why is that? Because when you have I cap and two I cap, now you must know that I cap and I cap they both are सेम होने की वजह से ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट हो रहे होंगे दोनों वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो अगर आप सॉल्व करो तो यह हो जाएगा आई कैप की वैल्यू मान लो 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा मतलब कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 is 1. Similarly for j cap into j cap also you can do. So it becomes j cos theta. cos 0 होगा यहाँ पे तो उसकी वैल्यू होती है 1. Similarly for k cap. If I take I cap j cap, अब आपको पता है I cap x एक्सिस का है, j cap y एक्सिस का है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है that is 90 डिग्री. So when you multiply these two, the product is ij cos theta or ij cos 90 in this case, because इन दोनों के बीच का एंगल है 90. cos 90 की वैल्यू होती है 0, दैट्स वाई इट कम्स एज ij इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0. सिमिलरली फॉर जे कैप एंड के कैप एज वेल, इन दोनों के बीच में एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये है जे कैप, दिस इज़ के कैप, इन दोनों के बीच में भी 90 होता है। ये जो तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस वॉज योर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक इफ you want to. Now moving on to the next topic, properties of scalar product. The first one is that dot product always obeys commutative law. What do you mean by commutative law? This is there in maths also. Suppose we have two vectors a dot b, इनका कोई सॉल्व करके आंसर आया है, that will always be equal to b dot a. So this a dot b is equals to b dot a. This is your first property of scalar product, that dot product always obeys commutative law. अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो a डॉट b जो है इट इज़ ए बी कॉस थीटा, b डॉट a होगा बी ए कॉस थीटा. जब a और b की वैल्यू तो सेम ही है तो a और b को मल्टीप्लाई करो, b और a को मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है, आंसर सेम ही आएगा. तो a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल होता है. दिस इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव property. The next is second, the dot product of a vector with itself gives the square of its magnitude. ये अभी किया था हमने कि अगर कोई वेक्टर है उसी के साथ उसी की ही मल्टीप्लाई होगी
तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस आएगा वो कॉस ज़ीरो होगा, क्योंकि एक वेक्टर अपने ही साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनके बीच में एंगल तो ज़ीरो होगा, कोई एंगल बन ही नहीं रहा है बीच में। तो इसीलिए अगर कोई वेक्टर अपने खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्केलर प्रोडक्ट comes as the square of its magnitude. If the two vectors are mutually perpendicular, then their scalar product is 0. Why? Because A dot B, if they are mutually perpendicular होंगे दोनों अगर ये, तो ए बी cos 90 आ जाएगा ये, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, so your product will become 0. We have done this just now. This is the same. The next property is two vectors are collinear. Now this collinear word you must be familiar with it. This was in your class 10th also. Collinear, ये बहुत important term है मैथ्स में. Now it has come to physics also. तो दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में कब होंगे? कोलिनियर उन्हें कब कहेंगे? जब वो पैरेलल हों, या तो पैरेलल होने चाहिए या एंटी पैरेलल हों एक दूसरे के. तो जब तो ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो दे विल बी एक्टिंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन मैग्नीट्यूड. अगर कोई दो वेक्टर पर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल ज़ीरो होता है, ये ध्यान रखना है. अगर वो एंगल ज़ीरो है तो देख लेते हैं. मान लो ये ए डॉट बी दोनों पैरेलल हैं, तो इनको सॉल्व करके आएगा ए बी कॉस ज़ीरो. तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा ए बी. अगर ये एंटी पैरेलल हुए, एंटी पैरेलल मतलब एक का मुंह उधर है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री. तो देख लेते हैं सॉल्व करके. थीटा जो है वो 180 है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 180. कॉस 180 को कैसे सॉल्व करेंगे? अब दिस इज़ इन योर मैथ्स ऑल्सो. कॉस 180 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 90, एंड कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज़ माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 90 in this case. Cos 90 plus theta becomes minus sin theta. Minus sin theta, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो it becomes minus 1. So that's why your answer will be minus AB. अगर वो एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो AB ही आएगा. और क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वी पुट दिस मॉड्यूलस. तो ये मॉड्यूलस का जो काम होता है क्या होता है? इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द मॉड्यूलस इट बिकम्स पॉजिटिव. तो आंसर तब भी ए बी ही आएगा अगर वो नेगेटिव भी है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. यू कैन राइट दीज प्रॉपर्टीज़ इन योर notebook, and along with that you can also write these that I have explained, examples. And the last property that we have is the dot product obeys the distributive law. What do you mean by distributive law now? Suppose I have three vectors and I take the product of A with B plus C. So अगर हम देखें तो ये इक्वल होना चाहिए A डॉट B प्लस A डॉट C. अगर ये चीज़ फुलफ़िल हो रही है वेक्टर्स में तो देन दिस इज़ कॉल्ड द, यू कैन राइट देयर दैट दे ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देयर इज़ एन अराइवल ऑफ अ थर्ड वेक्टर ऑल्सो, वेक्टर C. So if we take A dot B plus C, so it becomes A dot B plus A dot C. So these were your properties of the scalar product of vectors. Now try this question on your own. खुद try करो इसको. You have to tell that, prove that two vectors, we have two vectors A and B, and you have to prove that they are mutually perpendicular to each other. How do you prove that? You take out their scalar product. A dot B निकाल देते हैं इसमें. A dot B निकालेंगे जब, तो बेसिकली वी विल राइट द A वैक्टर पहले ब्रैकेट में, देन वी राइट B वैक्टर. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव I कैप
2 जे कैप 3 के कैप, बी में है 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो आई कैप वाले का जो आगे कॉफिशिएंट है विच इज़ 1, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप ओनली ऑफ बी। आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ ही करना है, क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ करते हो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये अभी ऊपर एक्सप्लेन हुआ है, दो डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं तो वो एक दूसरे के 90 होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। तो आई कैप वाले का आई कैप के साथ ही प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तभी वो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आई कैप है, यहाँ पे 2 आई कैप है, तो 1 इंटू 2, देन प्लस वी हैव 2 जे कैप, यहाँ पे है माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1, देन प्लस वी हैव 3 के कैप एंड देयर इन वेक्टर बी देयर इज़ नो के कैप, सो व्हाट यू विल राइट, जब वहाँ के कैप है ही नहीं तो आप खुद ही लिख दो 0 के कैप, तो इट बिकम्स 3 इंटू 0. Solving this, you will get the value of a dot b. It becomes 2 minus 2, it becomes 0. अगर प्रोडक्ट ही 0 आ रहा है a dot b का, दैट मीन्स जो cos है थीटा जो है वो क्या होगा, थीटा मस्ट बी 90, क्योंकि cos 90 होता है 0. तो अगर ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है इसमें, इसका मतलब A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आपको प्रूव करना था ये. दिस इज़ हाउ यू प्रूव these questions. Now coming back to the definition of work. What is work? Work is said to be done when force is applied on a body and that produces displacement in the body. फोर्स लगाने पर बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, दैट इज़ वर्क. वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस एंड द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल. ये इसकी SI यूनिट होती है वर्क की.